everyone, welcome to my channel. Myself, Mrinalini Mato, MC with UGC NET exam qualified. In this video, we will discuss UGC NET exam paper CS Computer Science. Subject Computer System and Architecture, and today's topic is program. Before I start, I want to ask you some questions. You want to crack NTA UGC NET exam in first attempt? How to solve the paper in easy way with the shortcut tricks? You want to solve every question 30 to 50 seconds in the exam? You want to attempt 80 to 90% questions within the 2 hours? If you are thinking all these things, then this is the right channel for you. Best educator for you, UGC NET exam qualified, and it is the best approach. So now we will see computer system. Computer system is divided into two parts, hardware and software. It is called subdivided part through the functional entities. And hardware consists of physical device and software consists of instruction and data. Physical device, that means electronic components, whatever devices you are attached to the computer system whenever you are working. So all these things will come in the physical devices. So program. What is program? It is a sequence of instruction. For the computer is called a program. The data that are manipulated by the program constitute the database. Program, it is a sequence of instruction. It is called the program, and this program, collection of program, is called the system software. See, software has many types: application software, system software, and then embedded software. Embedded software. So many types are the software, but in the collection of programs comes in the system software. And system software example is operating system. It's work to make more effective use of the computer. Now, operating system. Why we need the operating system? The program includes in a system software package. System software package, that means whenever you purchase the computer system, that times already inbuilt operating system is there. Operating system, for example, Windows 10, Windows 11, okay, Mac. This is also operating system. So इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको खुद से कोई प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी उसमें रहता है, बन के आता है. तो ये एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हम लोग को दिया जाता है जब हम लोग खरीदते हैं कंप्यूटर सिस्टम को. तो ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका काम क्या है? एज अ यूजर को डिस्टिंग्विश करना, applications or distinguished from the application program. Application program, that means I am user, I am sitting in the computer system and I am solving in the some particular problem. So it is called a program. I am solving the some particular questions. So it is called a program. But who is solving? It is the user. User यहाँ पर टाइप करा तो user उसको solve कर रहा है प्रोग्राम को. सो ये जो यूजर है, यूजर को डिस्टिंग्विश करने का काम करता है कौन? ओएस करता है. तो यूजर कहाँ पे लिखेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम में लिखता है. एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो यूजर रिटन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दी मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज, दैट मीन्स 0 and 1. इसके मैंने पूरे वीडियो जो है डिजिटल कंप्यूटर्स में मैंने बताया है क्या होता है 0 1. तो आप लोग उसको देखिएगा तो पता चल जाएगा 0 1 का क्या मतलब होता है. तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन समझता नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का. तो कंपाइलर जब कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, तो ये काम किसका है? ये सिस्टम प्रोग्राम का काम है. तो सिस्टम प्रोग्राम हमारा ये वर्क करता है. और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हम लोग किस में लिखते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम पे. दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एक प्रोग्राम जो लिखते हैं, एक इंस्ट्रक्शन जो हम लोग उसको देते हैं, तो दैट इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स software is your Java, C, C++. These are all the languages. And यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? 1 by 1 प्रोग्राम लिखते हैं. So
always function to compensate the differences that exist between user needs and the capability of the hardware. कभी कभी यूजर्स की नीड बहुत ज्यादा होती है और कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर उसका है नहीं, उसका कैपेबिलिटी ही नहीं है हार्डवेयर का, तो वैसे में भी वो सपोर्ट नहीं करेगा सिस्टम को। तो उसके लिए आपको देखना, इसी वजह से जब भी आप परचेस करने जाते हो कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको शॉपकीपर जो है ना क्वेश्चन करता है कि आप उसमें कौन सा वर्क करने वाले हो, आपको बेसिकली किस में काम होने वाला है, तो उसके बेसिस से वो आपको कंप्यूटर सिस्टम सजेस्ट किया करता है। तो इस चीज के इसी वजह से, क्यों, दैट मीन्स वो क्या करता है, कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। जस्ट लाइक इन द किड को अगर मैं बोलूंगी कि बेटा जाके 5 kg का राइस लेके आ जाओ, तो क्या वो ला सकता है? नहीं ला सकता, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। हाँ, वो भी कौन सा 2 years के किड को मैं ऑर्डर कर रही हूँ। वही चीज अगर मैं 5 to 6 years की किड को अगर मैं बोलती हूँ कि बेटा जाके 5 kg का राइस लेके आ जाओ, तो तुरंत लेके आए, तो मतलब उसकी क्या कैपेबिलिटी है उतना की। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी भी सिस्टम की भी कैपेबिलिटी होती है, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी होती है, यूजर्स का नीड्स अलग होता है। तो इन दोनों को कंपेंसेट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ट्रांसलेट करने का भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसको कलेक्शन करके रखने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इन द डिजिटल कंप्यूटर, ये रिलेटेड टॉपिक है, इन द डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आता है प्रोग्राम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर डिजाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑल द टॉपिक्स एंड सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। और मैंने काव का एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर मैंने सारे वीडियो को मैं उस प्लेलिस्ट में डाली हूँ। तो आप लोग को अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें काव सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।